Very good morning, my dear student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajada. Student, today I am taking the important and another article from the chapter number 6, Work, Energy and Power of the Class 11 Physics NCERT. Sir, what is the name of the topic? Expression for loss of energy. एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ एनर्जी. एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा स्टूडेंट? प्रूव दैट द इन इलास्टिक कोलेशन इन द वन डायमेंशन ऑल्सो ड्राइव अ एक्सप्रेशन फॉर द लॉस ऑफ एनर्जी. दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा के एंड डेल्टा के विल बी इक्वल ऑफ K1 माइनस K2 और K2 minus K1. Okay student, you know that very well. delta that means a small quantity. याद रखिएगा delta that means a small quantity. So loss of energy that means a change in energy या delta K will be equal of K1 minus K2 or K2 minus K1. If K1 greater than K2, we measure by the delta K will be equal of K1 minus K2, and if K2 greater than K1, अगर जो K2 K1 से बड़ा है तो हम क्या लिखेंगे? K2 minus K1, और अगर जो K1 K2 से बड़ा है तो हम लिखेंगे K1 minus K2. ओके स्टूडेंट, मतलब कहीं ना कहीं we have to calculate the loss of energy and what is the mean of the K. हम पहले हर एक बेसिक को करेंगे. K that means a kinetic energy will be equal of 1/2 into square of velocity. K will be equal of 1/2 mv square. M that means a mass of object, v that means a velocity of object. Okay students, so we will start with the simple एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू डायग्राम. स्टूडेंट ध्यान से देखिए. लेट वी कंसिडर कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू बॉडीज. फर्स्ट वन, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू बॉडीज of masses. Mass will be equal of small m1 and small m2. Let us consider the mass of body A will be equal of m1 and the mass of body B will be equal of m2, and the velocities before collision, the velocity before collision will be equal of u1 and u2. Student, be careful. First one, capital A and capital B are two bodies and mass will be equal of small m1 and small m2. The velocities of the body A will be equal of u1 and the velocity of body B will be equal of u2 before collision. Okay student, let us consider the velocity of the first body greater than द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉडी. सर वाई, आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे वाई, तो जरा ध्यान से देखिए स्टूडेंट. कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बोथ आर द मूविंग ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन. u1 टूवर्ड्स u2, ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी. दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है. अगर जो ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी ए से ज़्यादा होगी तो इनके बीच का डिस्टेंस धीरे धीरे क्या होता जाएगा? इंक्रीज. फॉर एग्जाम्पल वी टेकिंग 10 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर. कंसिडर इसकी वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर है और इसकी 5 किलोमीटर पर आवर है, तो ये हमेशा इसके पीछे होगा और इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो धीरे 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 डिस्टेंस भी इंक्रीज होती जाएगी. और अगर जो सर दोनों के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी तो इनके बीच में कोलिशन नहीं होगा. सो सपोज द वेलोसिटी ऑफ ए मोर देन वेलोसिटी ऑफ बी. अगर जो इसकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा होगी तो ड्यू टू डेल्टा टी थोड़ी देर के बाद ए कोलाइड विद द बी. ओके स्टूडेंट, दैट मीन्स आफ्टर कोलिशन जब ये ए बी के साथ कोलाइड करेगा तो मास तो सेम रहेंगे, मास तो चेंज नहीं होंगे, बट वेलोसिटी विल बी इक्वल ऑफ वी. याद रखिएगा स्टूडेंट, हमने क्या सीखा है? लेट the masses of object capital A and capital B will be equal of m1 and m2. Second one, velocity will be equal of u1 and u2. Velocity will be equal of u1 and v2 before collision. After collision velocity become v. Okay student, before collision u1 more than u2. A simple introduction related to diagram. ध्यान से देखिए. Consider a body capital A
of mass small m1 and another body capital B of the mass m2, which are moving in the same direction with velocity u1 and u2, where u1 greater than u2, that means a velocity of A more than velocity of B, both collide and stick together. Okay student, both collide and stick together एंड मूव विद द कॉमन वेलोसिटी। जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो एक साथ एक वेलोसिटी के साथ क्या करेंगे, मूवमेंट्स करेंगे। वेलोसिटी विल बी इक्वल ऑफ v। ओके स्टूडेंट, नाउ इन इलास्टिक कोलेशन, व्हाट इज द मीन ऑफ द इन इलास्टिक कोलेशन एंड इलास्टिक कोलेशन। इलास्टिक कोलेशन क्या होता है स्टूडेंट, ठीक है, जब हम किसी चीज़ को ऐसे खींचते हैं और वापस से छोड़ देंगे तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, लगातार कोलेशन होगा। ओके स्टूडेंट, आपने देखा होगा ऐसा प्रोसेस, उसको हम बोल सकते हैं एग्जांपल ऑफ द इलास्टिक कोलेशन। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों जब कोलाइड कर रही है तो उसके बाद ठीक है मोमेंट करेगी। तो ये कौन सा एग्जाम्पल होगा, ये एग्जाम्पल होगा इन इलास्टिक कोलेशन। और यहाँ पर ये पता चला है इन इलास्टिक कोलेशन इज अ एग्जाम्पल ऑफ द वन डायमेंशन। दैट मीन्स कहीं ना कहीं बाय यूज ऑफ द डायग्राम वी कैन प्रूव इन इलास्टिक कोलेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ द वन डायमेंशन। ओके स्टूडेंट, नाउ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है पहले ये समझिए। Momentum basically divide into two category. Okay student, first one linear momentum and second one angular momentum। समझिए, मोमेंटम मतलब अगर जो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, फॉर एग्जांपल ठीक है कैपिटल ए, वो कौन से में, रेस्ट में, और बी जो है वो मोशन में, और अचानक आके वो क्या करता है, ए पर कोलाइड करेगा तो ए की पोजीशन में भी चेंज हो जाएगा, रेस्ट टू मोशन ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ बी। ओके स्टूडेंट, चेंज इन द पोजीशन ऑफ ए ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ बी। जितनी वेलोसिटी होगी बी की उतना ज़्यादा ए में क्या आएगा, सर्टेन चेंज आएगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलेंगे, मोमेंटम। एंड मोमेंटम बेसिकली डिवाइड इनटू टू कैटेगरी, फर्स्ट वन लीनियर मोमेंटम एंड सेकंड वन एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कब होता है, जब दोनों ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर वन डायमेंशन में मोशन कर रहे हैं प्लेन पर। ओके स्टूडेंट, इन द सिंपल लीनियर दैट मीन्स एक डायरेक्शन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर मोमेंटम। और अगर जो ऑब्जेक्ट मूविंग इन द सर्कुलर पाथ तो वहाँ पर क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम। ओके स्टूडेंट, सो लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम represented by p will be equal of m into v, that means a mass into velocity. Okay student, p will be equal of m into v, that means a mass into velocity। मतलब कहीं ना कहीं अगर जो velocity will be increase, linear momentum will be increase, velocity will be decrease, linear momentum will be decrease, because m is a always constant। मतलब कहीं ना कहीं द मोमेंटम होगा यहाँ पर कोलेशन में। तो ध्यान से देखिए, ए कोलाइड विद द बी, दैट मीन्स अ एग्जाम्पल ऑफ द लीनियर मोमेंटम। एंड वी नो दैट वेरी वेल, ठीक है, मोमेंटम बिफोर कोलेशन विल बी इक्वल ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलेशन। मोमेंटम दैट मीन्स अ मास इनटू वेलोसिटी। तो हम फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, मास दैट मीन्स अ m1 एंड वेलोसिटी विल बी इक्वल ऑफ u1 प्लस m2 and u2। so m1 plus u1 plus m2 plus u2 will be equal of, यहाँ पर देखिए m1v प्लस m2v। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर इन दोनों के मास मिलके कितने हो जाएंगे, m1 प्लस m2 एंड वेलोसिटी विल बी इक्वल ऑफ v सच दैट m1 प्लस m2 इंटू v। याद रखिए ये इसके इंटू में, सामने वाले के अपॉन में, सो वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ v will be equal of m1 u1 plus m2 u2 divided by m1 plus m2. What is the mean of the v? V that means a common velocity after collision. Okay student, I hope you getting the first equation। आपको यहाँ तक का समझ आया, ठीक है। फिर से थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर द टू बॉडीज, मास विल बी इक्वल ऑफ स्मॉल m1 एंड स्मॉल m2, वेलोसिटी विल बी इक्वल ऑफ u1 एंड u2। ओके स्टूडेंट, u1 मोर देन u2। नाउ momentum before collision, momentum after collision, both are equal, so we getting the value of v। okay student, now
काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलेशन, फर्स्ट वाली के लिए बात कर रहे हैं हम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है स्टूडेंट? वी नो दैट अबाउट द काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल ऑफ 1/2 मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। सो मास 1/2 mass of A will be equal of m1 and velocity will be equal of u1 before collation. Okay students, so 1/2 m1 u1 square after collation mass will be equal of m1 plus m2 and velocity will be equal of v, such that we can write k2. देखिए स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलेशन रिप्रेजेंटेड बाय k1, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलेशन रिप्रेजेंटेड बाय k2, सच दैट k2 विल बी इक्वल ऑफ 1/2 m1 प्लस m2 v स्क्वायर। याद रखिए व्हाट इज द मीन ऑफ द v दैट मीन्स अ कॉमन वेलोसिटी आफ्टर कोलेशन स्टूडेंट। बट यहाँ पर हमने v की वैल्यू निकाली है। सो बाय यूज ऑफ द इक्वेशन नंबर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ v पुटिंग द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ध्यान से देखिए, जो v की वैल्यू है उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया है m1 u1 प्लस m2 u2 होल बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। बट स्टूडेंट, जैसा भी हमने बात करा इन द केस ऑफ द ऑब्जेक्ट a, जब हम फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट के लिए बात कर रही है तो यहाँ पर u2 कितना होगा? 0। यस और नो? जैसा भी हाल मैंने बताया है काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलेशन, तो बिफोर कोलेशन में आप सिर्फ कौन से ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो? फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स u1। तो यहाँ पर आपने u2 कितना लिया है? 0। तो मैं यहाँ पर u2 की जगह पर कितना पुट करूँगा? 0। जैसे ही आपने u2 को 0 लिखा तो मुझे रिजल्ट कितना मिल जाएगा? ठीक है, m1 u1 बाय m1 प्लस m2, दैट मीन्स u2 विल बी इक्वल ऑफ 0, बट होल स्क्वायर दैट मीन्स न्यूमरेटर का भी स्क्वायर होगा और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर होगा। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिए m1 प्लस m2 विल बी कैंसल बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 will be cancelled by the single m1 plus m2, so we getting 1/2 m1 square u1 square divide by m1 plus m2, इक्वेशन नंबर थर्ड। स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ v बिफोर कोलेशन आफ्टर कोलेशन। ओके स्टूडेंट, फिर हमने क्या करा? v की वैल्यू को यहाँ पर पुट करा और u2 विल बी इक्वल ऑफ 0, सो फाइनली वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ k2। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, मुझे ये फाइंड आउट करना है कि k1 ग्रेटर देन k2 है या k2 ग्रेटर देन k1 है, क्योंकि मुझे क्या निकालना? लॉस ऑफ एनर्जी, एंड लॉस ऑफ एनर्जी विल बी इक्वल ऑफ k1 माइनस k2 और k2 माइनस k1। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा फंक्शन है ये भी देखिए। कैसे पता करेंगे? वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ द k1 एंड वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ k2, सो k1 डिवाइड बाई k2 या k2 डिवाइड बाई k1। इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड। बाय यूज ऑफ द इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड बाय यूज ऑफ द इक्वेशन नंबर थर्ड, LHS will be divided by LHS and RHS will be divided by RHS. So finally 1/2 will be cancelled by 1/2, m1 cancel by m1, u1 cancel by u1। देखिए स्टूडेंट, सिंगल m1 cancel by the m1, u1 square will be cancelled by u1 square। So finally we getting m1 प्लस m2 डिवाइड बाय m1। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर जो मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। ये जो चीज़ है, ठीक है, x बाय वाई इक्वल टू 3/4, कभी भी मैथमेटिक्स में अगर जो कोई भी लिखा हुआ है, ठीक है, रेशनल नंबर विल बी इक्वल ऑफ रेशनल नंबर, दैट मीन्स न्यूमरेटर विल बी इक्वल ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी इक्वल ऑफ डिनोमिनेटर। तो अगर जो आप ध्यान से देखें, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। कितने ऑब्जेक्ट है? दो ऑब्जेक्ट है, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। मासेस विल बी इक्वल ऑफ m1 एंड m2। कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल 2 kg, फॉर एग्जांपल 3 kg। तो मैं इस एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर? सर आप सोचिए, ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? m1 प्लस m2 और यहाँ पर क्या है? इंडिविजुअल m1, सिर्फ m1 है, तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिए,
ठीक है, आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ पा रहे होंगे m1 प्लस m2 मोर देन m1 बाय यूज ऑफ द इक्वेशन नंबर 4 प्रैक्टिकली वी कैन से m1 प्लस m2 इज ग्रेटर देन m1, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर के सामने क्या है k1 सच दैट वी कैन से k1 ग्रेटर देन k2। ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखिए x डिवाइड बाय y इक्वल टू 8 बाई 5। अगर जो मैंने बोला 8 ग्रेटर देन 5, 8 ग्रेटर देन 5 दैट मीन्स x ग्रेटर देन y। ओके स्टूडेंट, वी कैन से x ग्रेटर देन y। सो स्टूडेंट वी कैन से 8 ग्रेटर देन 5, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इन द केस ऑफ द RHS, so we can say LHS। In the case of the LHS also numerator greater than denominator, so we can say K1 greater than K2। मतलब मुझे फाइनली क्या मिला स्टूडेंट, K1 greater than K2, so we can say delta K will be equal of K1 minus K2। अब देखिए जरा यहाँ पर K1, what is the standard value of the K1 will be equal of 1/2 m1 u1 square and the value of K2, the value of K2 will be equal of 1/2 m1 plus m2 v square। ओके स्टूडेंट, और हमारे पास यहाँ पर K2 की एक और वैल्यू है, K2 की वैल्यू है 1/2 m1 u square and m1 plus m2। सो वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ द K1 and K2 स्टूडेंट 1/2 m1 u1 square 1/2 m1 u1 square as a common factor, so we getting outside of bracket here -1 here सिंगल m1। देखिए यहाँ पर क्या निकाला मैंने, m1 u1 स्क्वायर बाहर है, मतलब एक m1 अंदर बच जाएगा। ओके स्टूडेंट, बाय LCM, ठीक है, m1 प्लस m2 माइनस m1 एंड फाइनली m1 विल बी कैंसल बाय m1, सो वी गेटिंग m2 by m1 plus m2 by multiply m1 m2 and u1 square, so final result will be equal delta k equal to 1/2 m1 m2 upon m1 plus m2 u1 whole square। ओके माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, क्या करा है हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, इस्टेब्लिश अ एक्सप्रेशन to determine loss of energy। what is the mean of the loss of energy, delta k equal to k1 minus k2 और k2 माइनस k1। तो मुझे सबसे पहले ये रिलेशन बताना है कि k1 k2 से बड़ा है या k2 k1 से बड़ा है। तो स्टूडेंट, ठीक है, हमने क्या करा, सबसे पहले v की वैल्यू निकाली, k1 की वैल्यू निकाली, v को पुट करा, हमने वैल्यू निकाली k2 की, k1 को k2 से डिवाइड कीजिए या k2 को k1 से डिवाइड कीजिए, हमको रिलेशन पता चल गया है k1 ग्रेटर देन k2, सो फाइनली वी टेक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म डेल्टा k इक्वल टू k1 माइनस k2, सिंपल LCM, देन फाइनली वी गेटिंग द फाइनल रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ द डेल्टा k विल बी इक्वल ऑफ 1/2 m1 m2 डिवाइड m1 plus m2 into u1 square। I hope student you getting the 110% solution related to loss of energy और example of inelastic collision। जब इस क्वेश्चन को आप समझेंगे उसके बाद एक दो बार अपने हाथ से, ठीक है, करने की कोशिश कीजिएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे डेरिवेशन उतना कंफर्टेबल आपको फ्यूचर में एग्जाम में लिखने आएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajoda। Student, like my video, share between the friends, subscribe our channel and please study all subject from our channel। Thank you so much।